السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ وہ زبردست جادوگر ہے، میں نہیں مانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہم سے لا علم ہے، حالانکہ اگر اس کا علم زیادہ طاقتور ہوتا تو وہ یہ جان جاتا کہ اس کی حکومت کے اصل باغی اس کے نزدیک موجود ہیں۔ او ہاں، یہ تو درست ہے۔ کچھ بھی ہو نیولس، ہمیں اپنا مشن کو پورا کرنا ہے۔ ان دونوں میں سے کسی کی حکومت نہیں ہونی چاہیے اور تم میرے ہم نوا ہو۔ ویسے ایگانوس کو زبردست شکست ہوئی، اب اس کی سوچ کیا رخ اختیار کرتی ہے یہ دیکھنا ہے۔ اور پھر ایگانوس کے دو سپاہی ہمیں بلانے آ گئے۔ اس خادم کو بھی طلب کیا گیا جو نیوسکی کی خوابگاہ پر تعینات تھا۔ سپاہی نے خاص طور سے کہا کہ اور پھر ہم دونوں تیار ہو گئے۔ یہ بھی بہتر ہی ہوا نیولس کہ تم میرے ساتھ ہو، اس طرح میں مطمئن رہوں گا۔ لیکن ایگانوس سے جو کچھ بات چیت کرنا ہے اس سے تم مطمئن ہو پوری طرح؟ بات یہ ہے نیولس کہ ہمیں وہ جوا کھیلنا ہے۔ ہم نے چاروں طرف پاؤں پھیلا رکھے ہیں اور ہم کسی طور پر محدود نہیں ہیں۔ اگر ہم ایک پہلو سے شکست کھاتے ہیں تو ہمارے پاس دوسرا ذریعہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ سرنگ مکمل ہو جائے تو ہماری طاقت بھی کارگس میں بڑھ سکتی ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے کارگس کے دوسرے علاقوں میں نیوسکی کے اتنے حامی اور ہمدرد نہ ہوں گے جتنے کہ اس علاقے میں موجود ہیں۔ گویا اگر ہمیں کسی جگہ سے خدشہ ہو سکتا ہے تو وہ صرف اسی علاقے سے۔ اگر ہم نے یہاں نیوسکی پر قابو پا لیا تو باقی معاملات سے بآسانی نمٹا جا سکتا ہے۔ یقیناً، نیولس نے جواب دیا۔ پھر وہ پرخیال انداز میں بولا، لیکن نیولس یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ سپاہی ہم سے فاصلے پر تھا، اس لیے ہمیں یہ خدشہ نہیں تھا کہ وہ ہماری گفتگو سنے گا۔ کیا سوال پیدا ہوتا ہے نیولس؟ ان دونوں کا مسئلہ تھا۔ تمہارے خیال میں ان میں سے کس کی زندگی زیادہ اہم ہے، نیوسکی کی یا ایگانوس کی؟ نیولس نے کچھ سوچتے ہوئے سوال کیا اور میں اسے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے کہا، میرے دوست نیولس، تم اس بات سے قطعی ناواقف ہو کہ نیوسکی در حقیقت کیا ہے۔ تم نے اس کی ایک شکل دیکھی اور دوسری شکل بھی دیکھ لی جس میں وہ لیزل کی حیثیت سے سامنے آیا۔ لیزل ایک شیطان ہے اور اسے شیطان صفت کہنا میرے خیال کے مطابق مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہم اسے مکمل شیطان کہیں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں اور اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ ایگانوس اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تم نے دیکھا کہ اس نے ایگانوس کی زندگی بھر کی کاوشوں کو شکست دے دی اور کس طرح اس نے اپنے آپ کو ایگانوس کی نگاہوں سے محفوظ رکھا۔ بہت ہی چالاک انسان ہے۔ وہ منشیات کی زندگی میں ڈوبا رہا لیکن حکومت مکمل طور پر اسی کی رہی۔ یعنی باہر کے لوگ یہی بات جانتے ہیں کہ نیوسکی شہنشاہ ہے، اور ایگانوس نے بھی یہی بات مشہور کی۔ نیوسکی کی بادشاہت میں اس کی کوئی شخصیت کا کوئی خاص عمل دخل نہیں۔ ادھر ایگانوس اپنے طور پر یہی سمجھتا رہا کہ حکومت وہ خود کر رہا ہے اور ذریعہ نیوسکی ہے۔ لیکن نیوسکی کی سوچ زیادہ خطرناک تھی۔ اس نے یہی سوچا کہ ایگانوس کی حیثیت کیا رکھتا ہے اور اسے جب چاہے وہ مٹا سکتا ہے۔ چنانچہ اس لحاظ سے نیوسکی ذہنی طور پر بہت زیادہ طاقتور ہے اور بلا شبہ اس کے علوم حیرت انگیز ہیں، اور وہ اپنی زندگی میں نئے تجربات کر سکتا ہے جو میں نے کارگس کے کسی دوسرے شخص میں نہیں پائے۔ اسی لیے میں نے یہ بات کہی کہ لیزل مکمل شیطان ہے۔ بالکل درست۔ تو اس لیے تمہارا خیال یہ ہے کہ نیولس اگر نیوسکی ہمارے راستے سے ہٹ جائے تو زیادہ بہتر ہے؟ زیادہ بہتر کیا، نیوسکی کو ہمارے راستے سے ہٹنا ہی چاہیے، اور اب خاص طور سے ان حالات میں جب کہ اس کی شخصیت کھل گئی ہے اور ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ بہت خوب، گویا تم یہ چاہتے ہو کہ نیوسکی راستے سے ہٹ جائے۔ ہاں، میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا نیوسکی کا راستے سے ہٹنا اتنا آسان ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، جو کچھ تم نے بتایا ہے
उसके तहत तो ये इतना आसान नहीं मालूम होता। देखना ये है कि न्यूलस के ऊंट किस करवट बैठता है। उस वक्त जब तक मेरे ज़हन में ये ख्याल था कि न्यूस्की सिर्फ एक ताकतवर गोरीला है और एगानोस असल ज़हन है जो उसकी पुश्त पर काम कर रहा है। मेरे ज़हन में कोई तरद्दुद नहीं, मैं समझता था कि मैं न्यूस्की को शिकस्त दूंगा। लेकिन जब से मुझे उसकी असलियत मालूम हुई, मेरे ज़हन में बहुत से ख्यालात हैं। तुम मायूस हो यूलिसस? न्यूलस ने पूछा। नहीं न्यूलस, लेकिन अब मामला बदल गया है, वो बहुत ताकतवर है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, ख़ास तौर से उसके अलूम। हमें दुश्मन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये तो ठीक है, फिर अब तुमने क्या सोचा है न्यूलस? मैं भला क्या सोचूं, मैं तो हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ, न्यूलस ने परेशान लहजे में कहा। तो फिर मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि उलझो नहीं, हर मुश्किल का कोई ना कोई हल ज़रूर होता है। अगर हल ना हो तो मुश्किल भी नहीं होती। ये तो दुरुस्त है, न्यूलस ने कहा। गुफ्तगू करते हुए हम दोनों महल के दरवाजे में दाखिल हो गए और थोड़ी देर के बाद हम एगानोस के सामने थे। ये वो जगह थी जहाँ आम लोगों का गुजर नहीं था, यानी एगानोस की वो पोशीदा रहायशगाह जिसके गिर्द सख्त पहरा रहता था और एगानोस अपने शैतानी कारनामे वहीं बैठकर अंजाम देता था। बाहर की दुनिया में वो सिर्फ अरकाशा का बाप यानी माजूल शहनशाह और न्यूस्की का नाना था, लेकिन यहाँ उसके लिए उसके अख्तियारात लामहदूद थे। एगानोस के चेहरे से फिक्रमंदी का इजहार साफ तौर से होता था। वो एक आराम कुर्सी में दराज था और उसके हाथ में शराब का जाम। हम दोनों को उसने अपनायत की निगाह से देखा। आओ बैठो, तुम दोनों इससे कबल जिस हैसियत से आए थे अब उसे भूल जाओ, क्योंकि तुम मेरे एक ऐसे राज में शरीक हो गए हो जिससे कोई और वाकिफ नहीं। लेकिन क्या तुम काबिल एतमाद हो? एगानोस ने गहरी निगाहों से हमें देखा। इसका फैसला एगानोस करेगा, न्यूलस ने जवाब दिया। एगानोस फैसले करने का अहल है क्योंकि उसने एक तवील अरसे तक हुकूमत की है और उसका ज़हन आज भी उसका साथी है। दुरुस्त कहा शहनशाह ने, न्यूलस बोला। और हर दौर में कुछ लो और कुछ दो के असूल का पाबंद रहा है और मैं सिर्फ तुम लोगों की वफादारी नहीं मांगूंगा बल्कि उसका सिला भी दूंगा। हकीकत पसंद शहनशाह की बात दानिशमंदाना है, न्यूलस ने कहा। सो ये सोच लो कि मुझसे ज़्यादा तुम्हें कोई कुछ नहीं देगा और तुम जो मांगोगे मैं उसे देने का वादा करता हूँ। शहनशाह की ये बात काफ़ी है। गोया मेरे वफादार बनकर तुम किसी और के वफादार बनने की कोशिश नहीं करोगे। क्या तुम इस बात का वादा करते हो? शाह एगानोस हमारी नीयत पर शक ना करे और इस बात का यकीन करे कि हमने जो कुछ किया अपनी वफादारी के तहत ही किया और आइंदा भी जो कुछ करेंगे उसमें ये एहसास मज़ीद शामिल होगा कि शाह की निगाहों में वक़्त पाने के बाद हमारी हैसियत मुख्तलिफ होगी, लेकिन इसके बावजूद हमारी वफादारी मशकूक नहीं होगी। हम वादा करते हैं कि हमेशा शाह एगानोस के वफादारों में रहेंगे और उसकी अच्छाई के ख्वाहां रहेंगे। तुम्हारी ज़ुबान से सच्चाई की बू आती है खादम, इस सिलसिले में तुम क्या कहते हो? एगानोस ने सवाल किया। मैं पुश्त हा पुश्त से एगानोस के वफादारों में से हूँ, मैंने जवाब दिया। तब ठीक है, अगर ऐसे वफादार मुझे हासिल हैं तो बहर सूरत मैं मायूस नहीं हूँ। लेज़ल कुबड़ा कैसे ही अलूम का माहर क्यों ना हो, लेकिन मेरी जहनी कुव्वतें और मेरे वफादारों का तावन उसे शिकस्त देगा और मुझे इस बात का भरपूर यकीन है। मैं अपने मोतमंदों के साथ तन्हा नहीं हूँ और कुबड़े को हैरत होगी कि जब वो ये महसूस करेगा कि खुद महल में मेरे लिए बेशुमार दोस्त हैं। शाह एगानोस ने कहा। यकीनन शाह की कुव्वत महदूद नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। सो मेरे दोस्तों, मुझे तुम्हारा मशवरा भी दरकार है और मैं तुमसे ये मशवरा ले रहा हूँ तुम्हारी इस हैसियत से नहीं जो इससे कबल थी, बल्कि मैं अपने मखसूस साथियों की हैसियत से तुम्हारा मशवरा चाहता हूँ। हम खलूस दिल से तैयार हैं, शाह एगानोस, न्यूलस ने जवाब दिया। तो क्या कहते हो तुम इस सिलसिले में कि जब कि तुम्हें यह मालूम है कि न्यूस्की के सिलसिले में मैंने धोखा खाया है? गोया न्यूस्की वो नहीं था जो मैंने उसे समझा, बल्कि वो कुछ और निकला और उसने अपनी कुव्वतों को महफूज रखा। लेकिन महल के लोग जिनके तहत हुकूमत के कारोबार चलते हैं वो इस बात से वाकिफ़ हैं
کہ ज़ुबान न्यूस्की की और जहन एगानुस का है और ज़ुबान बज़ाहिर कोई हैसियत नहीं रखती, क्योंकि इससे कबल वो लेज़ल को उसकी असल हैसियत से नहीं जानते थे। ये बात तो उनके इल्म में भी होगी कि सोचता एगानुस है, और अगर लेज़ल बजाते खुद कोई हैसियत रखता है तो उसका इस्तेहसाल नहीं कर सकता। गोया हम लोगों की वाकफियत से फ़ायदा उठा सकते हैं, और अगर चाहें तो न्यूस्की के रूप में छुपे हुए लेज़ल को ज़ाहिर भी कर सकते हैं। बेशक, मैंने जवाब दिया। तो तुम्हारे ख्याल में इस सिलसिले में कोई मौजू तरकीब है? एगानुस ने सवाल किया, और मैं उसकी ज़हनी तौर पर उलझनों पर गौर करने लगा। वो हमारे में जाने बूझे बगैर हमसे मशवरा ले रहा था। चुनाचा न्यूलस ने कुछ सोचते हुए कहा, शाह एगानुस, क्या ये नहीं हो सकता कि बड़े दरबार में हम लेज़ल को बेनकाब कर दें? ओहो, वो मैं जानता हूँ कि तुम एक ऐसे ओहदे पर फायद रह चुके हो जिसकी जिम्मेदारियां अहम होती हैं, लेकिन इससे कबल मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम ज़हनी बर्तरी के हामिल हो, और मुझे ये भी एहसास है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे ओहदे से माजूल कर दिया था और एक दूसरे शख्स को तुम्हारी जगह दे दी। न्यूलस, गुजरी बातों को जहन से निकाल दो और मुझे बताओ कि तुम अपनी ज़हनी क़ुव्वतों को बरोए कार लाते हुए क्या बेहतर तजवीज़ पेश कर सकते हो। यानी अगर मैं कुबड़े को बेनकाब करना चाहूँ तो किस तरह? एगानुस ने सवाल किया। शाह एगानुस, लेज़ल अपनी कोई हैसियत नहीं, वो एक बाइल्म इंसान है, लेकिन कारगस के कानून के मुताबिक ना तो उसने आरमून से जंग की है जिसकी हुकूमत हासिल की गई, और ना उसने ऐसा कोई कदम उठाया जिससे उसकी अपनी हैसियत मुस्लिम हो जाए। अब अगर हम दरबार आम में उसकी शख्सियत को बेनकाब करते हुए कहें कि लेज़ल ने अपने इल्म के ज़रिए उस हस्ती को ख़त्म कर दिया जो हुक्मरान थी, और कबीले के निकाब में मलफूफ होकर लेज़ल ने खुद को हुकूमत का वारिस साबित करने की कोशिश की और हुकूमत पर कब्ज़ा कर बैठा, तो क्या अहले दरबार उसकी हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे? हरगिज़ नहीं करेंगे, और यही कारगज़ का कानून है। शाह एगानुस ने जवाब दिया। इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम अहले दरबार को उसकी हैसियत बता दें तो क्या वो यज़ल की मुखालफत नहीं करेंगे? यकीनन करेंगे। तो फिर इससे बेहतर तरकीब और कौन सी हो सकती है कि बड़े दरबार में कुबड़े को बेनकाब कर दिया जाए और उसकी माजूली का मुतालबा किया जाए। शाह एगानुस, तुम अपनी हैसियत में फौरी तौर पर हुकूमत संभाल सकते हो और ये ऐलान कर सकते हो कि जब तक किसी बेहतर हुक्मरान का इंतखाब ना हो जाए तुम इस हुकूमत के निगरान हो और अपनी इस निगरानी में नए हुक्मरान का इंतखाब कराओगे। न्यूलस ने कहा, और एगानुस ने फ़ख्रिया निगाहों से उसकी जानब देखा। खूब खूब कहा, और तुम यकीन करो न्यूलस कि मैंने भी अपने जहन में यही फैसला किया था। यकीनन शाह एगानुस की ज़ुबान पर शक कैसे हो सकता है? न्यूलस ने जवाब दिया। तो फिर मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारी तजवीज़ से पूरी तरह मुत्तफ़िक हूँ, और मुझे इंतहाई खुशी है कि मैंने जो कुछ सोचा था और लोग भी उसी अंदाज में सोचते हैं, और वो चीज़ जिसके बारे में मैं कुछ सोचता या समझता हूँ उस चीज़ को मेरे लिए बेहतर समझते हैं। चुनाचा मैं तुम्हारी इस तजवीज़ से इत्तफाक करते हुए यही फ़ैसला करता हूँ कि फिर से दरबार में मैं कुबड़े की नकली शख्सियत का ऐलान कर दूँगा। हाँ, इस सिलसिले में अगर कोई और तजवीज़ हो तो वो भी बताओ। मैं ये चाहूँगा शाह एगानुस कि तुम इस सिलसिले में जल्दबाजी का मुजाहरा ना करो, बल्कि पहले अपने कुछ अहले दरबार को अपना हमनवा बनाओ और उन्हें इस हकीकत से आगाह करो कि लेज़ल क्या है। इस तरह जब दरबार में तुम इस बात का ऐलान करोगे तो शाह एगानुस, इस सूरत में तुम्हारे हमदर्दों के लिए वो ऐलान अजनबी ना होगा और वो तुम्हारा साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे। न्यूलस ने कहा। तब मैंने उस गुफ्तगू में मदाखलत की। मेरी राय कुछ और है न्यूलस। क्या? न्यूलस ने पूरी तवज्जो से मुझे देखा। ये इत्तेफाक नहीं है कि तुमने और शहनशाह एगानुस ने एक ही बात सोची और उसका आधार कर दिया। क्या तुम इससे इत्तेफाक समझते हो? तुम्हारे ख्याल में ये क्या है? एक मुअस्सर तदबीर यानी लेज़ल को बेनकाब करने के लिए यही तरीक़ेकार सोचा जा सकता है। तो फिर इससे मकसद गोया अगर कोई ऐसे मरहले में दाखिल हो जाए तो फिर वो क्या कर सकता है? वही जो शाह एगानुस ने सोचा और जो तुमने, वरना तुम्हारी तजवीज़ कुछ और होती। ठीक है, लेकिन बात समझ में नहीं आई। क्या लेज़ल अहमक है? जब दो जहन एक ही अंदाज में सोच सकते हैं तो तीसरा जहन क्यों नहीं सोच सकता? खादम की बात काबिल गौर है न्यूलस, एगानुस ने कहा।
लेकिन खुद भी तू मुतमिन नहीं होगा और वो भी यही सोच सकता है। लेकिन खादम, इसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? क्या ये तजवीज़ मुनासिब नहीं? ये बात नहीं है और इससे उम्दा और कोई तरकीब नहीं हो सकती। तो फिर तुम क्या कहना चाहते हो? यही कि अहले दरबार में से पहले से कुछ लोगों को इसके बारे में बताना मुनासिब नहीं, बल्कि ये इंकशाफ अचानक किया जाए। हाँ, गौर किया जा सकता है शाह अगानोस कि अहले दरबार सिर्फ उसके हमनवा होंगे, जबकि मेरे ख्याल में वहाँ तुम्हारे बारे में जानने वालों की तादाद ज़्यादा है। हाँ, ये दुरुस्त है। तो फिर तुम्हें उसकी क्या ज़रूरत है? तुम जब भी और जो भी कदम उठाओ उसमें ज़्यादा लोगों को शामिल ना करो और जिस वक़्त चाहो कदम उठाओ। तो फिर भरे दरबार में ये काम कर लिया जाए। वैसे खादम की बात मेरे जहन को लगती है और मैं इससे इत्तफाक करता हूँ। मुनासिब, न्यूलस ने कहा। दूसरे दरबार में तुम मौजूद रहोगे और इसके अलावा मुझे कुछ और लोगों की भी ज़रूरत रहेगी जो मेरे लिए जंग करें। बेहतर उनका बंदोबस्त मैं कर लूँगा, न्यूलस ने कहा। तो फिर मैं इस बारे में ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा। बस इस मामले को तय समझो और ख़ुद को उसके लिए तैयार करके दूसरे दरबार में शिरकत करो। जो हुक्म, न्यूलस ने कहा और हम वहाँ से चल पड़े। न्यूलस के होंठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी और उसने दिलचस्प निगाहों से मेरी तरफ देखा और हंसने लगा। क्यों न्यूलस, क्यों हंसी आ रही है तुम्हारे बारे में सोचकर? खैरियत? एगानोस तुम्हें खादम कहकर पुकारता है और उसे इस बात पर हैरत है कि उसके यहाँ के मामूली लोग उसकी जहानत को छूते हैं। अभी तो वो सिर्फ लेज़ल और न्यूस्की की तरफ मतवज्जा है, लेकिन उसे दूसरी खसूसियात का इल्म होगा तो वो कितनी हैरत करेगा। उसने भी लोगों को धोखा दिया है और उसे उस धोखे की सज़ा मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। बहरहाल दूसरे दरबार के बारे में क्या ख्याल है? सब ठीक है, काम हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो रहे हैं। हमारा अपना किरदार वहाँ क्या होगा? एक तमाशाई का, मैंने जवाब दिया और न्यूलस चौंक कर मुझे देखने लगा। क्या मतलब? वो आहिस्ता से बोला। हम हालात के तमाशाई हैं न्यूलस। जिन लोगों को तुम एगानोस की तरफदारी के लिए ले जाओगे वो तुम्हारे अपने आदमी होने चाहिए। ज़ाहिर है कि वही होंगे, लेकिन तुम उन्हें जो हदायत दोगे वो यूँ होगी कि अगर दरबार में कोई गड़बड़ हो तो हालात का जायज़ा लें। अगर एगानोस का पल्ला भारी रहे तो वो एगानोस के लिए जंग करने वालों में शामिल हो जाएं, और अगर देखें कि न्यूस्की भारी पड़ रहा है तो खामोशी इख्तियार कर लें और हालात का जायज़ा लें। ओहो, न्यूलस ने पुरख्याल अंदाज में कहा। यही बेहतर भी है न्यूलस। हाँ, मैं समझता हूँ, न्यूलस ने कहा और फिर गर्दन हिलाकर बोला। ठीक है यूलिसस, मैं तुम्हारी हदायत पर अमल करूँगा। फिर वो वक़्त भी आ गया जब दरबार आम लगा। गोरिल्ला न्यूस्की तख्त शाही पर फरोकश था और उसका मशीर और पेशरो एगानोस उसकी जानब से मुकदमात की पैरवाई कर रहा था और उसकी एमा पर फैसले दे रहा था। आखिरी मुकदमा निपटाने के बाद एगानोस ने दरबार पर एक निगाह डाली और फिर खुद भी खड़ा हो गया। अहले दरबार और मुअज़्ज़ज़ लोगों, एक मुकदमा मैं खुद भी पेश करना चाहता हूँ और अपनी जगह मैं अपना बुज़ुर्ग हेलालाज़ को मुकर्रर करता हूँ ताकि वो मेरे इस मुकदमे की पैरवी करे। मेरी निगाहें न्यूस्की पर जमी हुई थी जिसने चौंक कर एगानोस की जानब देखा था। हेलालाज़ खड़ा हो गया। तेरा मुकदमा किसके खिलाफ है एगानोस? उसने पूछा। न्यूस्की के खिलाफ, एगानोस ने कहा और दरबार में बिनबनाहट गूंज उठी। न्यूस्की गर्दन हिलाने लगा था। क्या कहना चाहते हो? न्यूस्की के खिलाफ, हेलालाज़ ने पूछा। यही कि वो न्यूस्की नहीं बल्कि लेज़ल है, एक कदीम जादूगर जिसने अपने इल्म के सहारे ये अंदाज इख्तियार किया और हुकूमत के असल हकदार को अगवा कराकर उसकी जगह खुद काबिज हो गया। इस खाल के नीचे लेज़ल पोशीदा है और हेलालाज़ लेज़ल को भूला ना होगा। न्यूस्की उठकर खड़ा हुआ था और दरबार में एक हंगामा बर्पा हो गया। क्या यह हकीकत है? क्या एगानोस सच कह रहा है? जवाब दिया जाए, न्यूस्की क्या कहता है? तब न्यूस्की ने गुस्सीले अंदाज में गर्दन हिलाई और फिजा में हाथ हिलाने लगा, गोया अपने गुस्से का इज़हार कर रहा हो। और फिर उसने एक तरफ इशारा किया और एक कवि हेकल आदमी तख्त के पास पहुंच गया। मेरा नाम अलाशा है और मैं न्यूस्की का नुमाइंदा हूँ। चूँकि न्यूस्की के पास कोई कुव्वत गोयाई नहीं है और उसका तर्जमान सिर्फ एगानोस है, लेकिन ये एगानोस की भूल है। न्यूस्की सिर्फ कुव्वत गोयाई और इंसानी जिस्म से महरूम है, उसके पास अक्ल व दानिश की कमी नहीं। इसलिए उसने मुझे अपनी
ابھی اشاراتی زبان سے آگاہ کیا تھا، اب میں اس کا ہم زبان ہوں۔ آؤ تم بھی آ جاؤ، لیکن آج میں نیوسکی کے وجود میں چھپے ہوئے اس شیطان لیزل کو بے نقاب کر دینا چاہتا ہوں، ایگانوس نے کہا۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو ایگانوس؟ الاشا نے پوچھا۔ یہی کہ جانور کے اس کھال کے نیچے جو لیزل پوشیدہ ہے، اس نے ارکاشا کے بیٹے، جسے وہ اب تمام سرا کہتا ہے، کو اس وقت اغوا کیا جب وہ پیدا ہوا تھا، اور خود ایک انوسی سازش کے تحت اس بچے کی شکل اختیار کر لی، اور اس کے بعد وہ خود ارکاشا کے لیے بھی ایک عذاب بنا ہوا ہے، اور کارگس کے لوگوں کے لیے بھی۔ میں صرف اس لیے اس کا مشیر کار بنا رہا کہ وہ قوت گویائی سے محروم ہے اور کارگس کا محافظ۔ میرے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ دراصل لیزل ہے، اور جب مجھے معلوم ہو گیا تو پھر میں بھلا اپنے فرائض کی انجام دہی سے غافل کیوں رہتا؟ چنانچہ آج میں اہل دربار کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ نیوسکی لیزل کا دوسرا روپ ہے، اور وہ کسی طور حکومت کے قابل نہیں، ایگانوس نے کہا، اور سارے درباری چونک پڑے۔ لیکن ایگانوس، تمہیں اس بات کو ثابت بھی تو کرنا ہوگا کہ وہ نیوسکی نہیں لیزل ہے۔ ہاں، اس کی کھال کے نیچے لیزل پوشیدہ ہے، اور اس کے بدن سے کھال کو اتار دیا جائے، ایگانوس نے کہا، اور دربار میں چہم گوئیاں ہونے لگی۔ تب لاشا اٹھا۔ الاشا نیوسکی کے پاس جا کر رک گیا اور نیوسکی سے کچھ سوالات کرنے لگا۔ تب الاشا نے ایگانوس کی جانب دیکھا اور عجیب سے انداز میں بولا، ایگانوس، نیوسکی کہتا ہے کہ وہ کارگس کا حکمران ہے، اور جو کچھ بھی ہے وہ کارگس کے قوانین کے تحت اس سرزمین کا حکمران بنا ہے۔ اس نے یہ حکومت آرمون کو شکست دے کر حاصل کی، اور ایگانوس چونکہ ایک معزول شدہ حکمران ہے، اس لیے وہ مشیر تو ہو سکتا ہے، قادر و حاکم نہیں۔ پھر وہ کس حیثیت سے یہ مقدمہ طے کرتے ہوئے اپنے اس اعتراض کو منظر عام پر لایا ہے؟ لاشا نے نیوسکی کے ترجمان کی حیثیت سے کہا۔ سابقہ حکمران ہونے کی حیثیت سے، اور چونکہ اس وقت اس حکومت کا حکمران کوئی نہیں، اس لیے سابق حکمران ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ میں اس حکومت کا نگران بن جاؤں اور حکومت کسی ایسے شخص کے سپرد کر دوں جو اس کا اہل ہو اور غدار نہ ہو، ایگانوس نے جواب دیا۔ لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ ہیلالاز نے ایگانوس کے ترجمان کی حیثیت سے اہل دربار سے پوچھا۔ ایگانوس کا سب سے پہلے یہ بات ثابت کرنا ہوگی کہ نیوسکی کے روپ میں واقع لیزل ہے۔ بہت سی آوازیں ابھریں، اور اس کے بعد اگر یہ بات سچ ثابت ہو گئی تب پھر کیا ہوگا؟ ہیلالاز نے سوال کیا۔ تب لیزل کو اس وقت گرفتار کیا جائے گا، اور حکومت کارگس کے سابق حکمران ایگانوس کے حوالے کر دی جائے گی، لیکن صرف ایک نگران حکومت، اور پھر ایگانوس نئے حکمران کے لیے انتخاب کرائے گا۔ کیا نیوسکی کو اس بات پر اعتراض ہے؟ ہیلالاز نے نیوسکی سے سوال کیا، اور نیوسکی کا ترجمان الاشا آگے بڑھ آیا۔ نہیں، نیوسکی اس بات کو تسلیم کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور شرط بھی ہے۔ وہ کیا؟ ایگانوس نے پوچھا۔ اگر ایگانوس یہ بات ثابت نہیں کر سکا تو پھر اسے مداخلت میں جا کے جرم میں گرفتار کیا جائے گا، یا پھر اسے یہ مہلت دی جائے گی کہ چونکہ وہ اچانک ہی حکومت کا دعوے دار بن کر ظاہر ہوا ہے، اس لیے اسے قانون کے مطابق نیوسکی کے سامنے آنا پڑے گا، اور اس کا فیصلہ کرنا نیوسکی کا کام ہوگا کہ اسے زندگی دے یا موت۔ میں یہ بات نہیں مانتا، کیونکہ نیوسکی سرے سے حکومت کا حقدار ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کا فیصلہ تو چند ساتھ کے بعد ہو جائے گا۔ اگر نیوسکی نہیں ثابت ہوتا تو پھر ایگانوس کو یہ حق حاصل ہے، ورنہ دوسری مشکل میں یہ بات بھی بالکل مناسب ہے کہ نیوسکی اس شخص کو اپنی مرضی کے مطابق سزا دے جس نے اس پر شک کیا، اور اپنی آواز شہنشاہ کے سامنے اس سے بلند اور برتر ثابت کرنے کی کوشش کی، لاشا نے کہا۔ اس بات پر سب نے ہی اتفاق کیا۔ میں نے خوفزدہ انداز میں نیولس کی جانب دیکھا، اور نیولس نے گردن ہلا دی۔ ہم نے اس سلسلے میں نہیں سوچا تھا یولیسس، اس نے آہستہ سے کہا۔ کیوں؟ کیا نیوسکی یا لیزل اپنے حکمت عملی یا اپنے علم کی قوت سے کام لے کر خود کو وہی نہیں ثابت کر دے گا جو وہ عوام کے سامنے ہے؟ ہاں، ممکن ہے۔ ایسی صورت میں جو کچھ ہوگا اس کا اندازہ تم کر لو۔ سب ٹھیک ہے نسن؟ کیا مطلب؟ یہ تم ایگانوس کے لیے دل میں ہمدردی محسوس کر رہے ہو؟ میرا خیال ہے کہ ہم لوگ صرف تماشائی ہیں۔ دو پہلوان آمنے سامنے ہیں، کون بھاری پڑے گا اس کا اندازہ بعد میں ہو جائے گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، باقی رہ جانے والے کو تو ہم شکست دیں گے، لیکن ایگانوس کے پاس ایک داؤ محفوظ ہے۔ کیا؟
इस वक्त वो अरकाशा को पेश करे तो वो उसकी मदद कर सकती है। अफसोस इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। अफसोस की कोई बात नहीं है न्यूलस, बस खेल देखते रहो, मैंने जवाब दिया और न्यूलस खामोश हो गया। एगोनोस काफ़ी पुरजोश था और उसे खुद पर बेहद एतमाद भी था। चुनाचा उसने ऐलान कर दिया कि वो उस शर्त को तस्लीम करता है और हमने सोच लिया कि एगोनोस के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी गई। न्यूस्की ने खुद को पेश कर दिया और वो इस इम्तिहान के लिए तैयार था। दरबार में भी मैंने देखा कि एगोनोस के हमनवा बहुत कम हैं। शर्त ऐसी आन पड़ी थी कि उनकी आवाज़ भी दब गई और अब सिर्फ इस बात के नतीजे के मुंतज़िर थे। चुनाचा हलालात के तलब करने पर अहले दरबार में से 2 अशखास आगे आ गए और फिर उसके इशारे पर न्यूस्की की खाल उतारने की कोशिश की जाने लगी। न्यूस्की गोरिल्लों के से अंदाज में सीना पीट रहा था और वो शदीद गुस्से में नज़र आ रहा था, लेकिन उसने तअर्ज़ नहीं किया और उन लोगों को अपनी सी कोशिश करने दी। वो लोग भी शायद एगोनोस के वफादारों में से थे। न्यूस्की को उड़ियाँ कर देना चाहते थे, लेकिन वो क्या करते। खुद लेज़ल की बात दूसरी थी, लेकिन दूसरे इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सके और बिल आखिर लोगों ने एतराफ़ किया कि न्यूस्की एक गोरीले के सिवा कुछ नहीं। एगोनोस के चेहरे पर बौखलाहट के आसार साफ नज़र आ रहे थे। मैंने खुद को देखा है और उसने अपनी खाल उतार दी थी और खुद को लेज़ल कहा था, बल्कि मेरे 2 गवाह भी मौजूद हैं। आह मेरी बेटी अरकाशा को बुलाओ और वो इस बात की गवाही देगी, आखिर वो उसकी माँ है। तुम्हारे गवाह कौन है एगोनोस? अलाशा ने पूछा और एगोनोस ने हम दोनों की तरफ इशारा किया। तुम लोग आगे आओ, अलाशा ने कहा और हम दोनों आगे बढ़ गए। अब क्या करें? न्यूलस ने आगे बढ़ते हुए मुस्तरबाना अंदाज में कहा। इनकार कर देना, हमने कुछ नहीं देखा, मैंने जवाब दिया और न्यूलस के अंदाज में तशन्नुज पैदा हो गया। क्या एगोनोस दुरुस्त कहता है कि तुम दोनों उसके गवाह हो? अलाशा ने पूछा। किस बात के? मैंने तअज्जुब से पूछा। क्या तुम्हारे सामने न्यूस्की लेज़र की शक्ल में नज़र आया था? हरगिज़ नहीं, मैंने सुकून से जवाब दिया। क्या कह रहे हो खादम? एगोनोस पागलों के से अंदाज में बोला और फिर उसने न्यूलस की तरफ देखा। न्यूलस तुम भी? शहनशाह न्यूस्की के खिलाफ किसी साजिश में हम हिस्सा नहीं ले सकते एगोनोस, न्यूलस ने जवाब दिया और एगोनोस के जिस्म में लर्ज़श नुमाया होगी। तुम गवाही नहीं दोगे न्यूलस? अरकाशा को अपनी माँ नहीं समझता। ओहो तुम सब बदल गए। तब न्यूस्की के खादम ने कहा, एगोनोस तुम शहनशाह न्यूस्की के खिलाफ साजिश करने में नाकाम रहे हो। इसका मुजाहरा पूरे दरबार में हो चुका है, चुनाचा अब तुम्हारे बारे में फ़ैसला करना ज़रूरी है। गोरिल्ला खड़ा हो गया। तब एगोनोस सख्त वहशत के आलम में चीखा, मेरे वफादारों, मेरे साथियों, न्यूस्की को कत्ल कर दो। इन तमाम लोगों को फना कर दो जो गद्दार हैं। हाँ शहनशाह मैं हूँ, सारे अहकामात मेरे होते हैं। लेकिन दरबार पर सकूत तारी हो गया। एगोनोस के हमदर्द भी समझ गए कि एगोनोस की अब कोई हैसियत नहीं, वो कोई ठोस बात कहने में नाकाम रहा और इस वक्त उसका साथ देना मौत के मतरादफ है। चुनाचा सब खामोश रहे और एगोनोस दीवानों की मानद घूम घूम कर सबको देख रहा था। कोई नहीं बोलेगा और तुम में से कोई मेरा साथी नहीं है, वो चीख कर बोला। अब गोरिल्ला आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। पूरे दरबार में पुरइसरार खामोशी छाई हुई थी। मैं खुद ही सब ठीक करूंगा, तुम एगोनोस की कुव्वत को महदूद समझते हो। अब न्यूस्की उसके सर पर पहुंच गया। एगोनोस ने उस पर खंजर का भरपूर वार किया था, लेकिन उस जंगजू गोरिल्ले के बारे में मैं खुद भी जानता था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और एगोनोस की कलाई पकड़ ली और फिर उसने एगोनोस की कलाई को झटका दिया और एगोनोस की चीख दरबार में गूंज उठी और उसका पूरा बाजू लटक गया था। खंजर उसके हाथ से गिर गया और वो चीखता हुआ पलट कर भागा, लेकिन गोरिल्ले ने अकब से उसे दबोच लिया और फिर उसने एगोनोस को ज़मीन से ऊंचा उठा लिया। देखने वाले साको जामत खड़े थे और ये मंजर देख रहे थे और उनमें जुरात ना थी कि वो इस मसले में कुछ बोल सकें। खुद एगोनोस के हमनवा भी खामोशी से ये मंजर देख रहे थे और उन्हें सांप सूंघ गया था। किसी को जुर्रत नहीं थी कि वो गोरिल्ले को रोकने की कोशिश करे। वो लोग शायद एगोनोस के लिए जान देने का अहद करके आए होंगे और इस वक्त अपनी जान बचाने की फ़िक्र में कोशा थे। तब एक बार गोरिल्ले ने
एगानोस की दोनों टांगें पकड़कर उसे उल्टा लटका दिया और फिर उसके हलक से धाड़ें निकलने लगी। ऐसी खौफनाक चीखें जो दिल दहला देने वाली थी। अहले दरबार पर सख्ता तारी था। उनके बदन आहिस्ता आहिस्ता लर्ज रहे थे और एगानोस का बदन दो हिस्सों में मुनक़िस्म होता जा रहा था। तब गोरिल्ले ने उसे ज़मीन पर फेंक दिया। सारी ज़मीन एगानोस के खून से रंगीन हो गई। मैं और न्यूलस साख्तो जामद निगाहों से गोरिल्ले की इस हरकत को देख रहे थे। मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। बहर सूरत हमारा एक दुश्मन ख़त्म हो गया था और न्यूलस तो ये बात जानता भी न था कि एगानोस की मौत मेरे लिए किस कदर दिलचस्प है। ये वही शख्स था जो मेरे खिलाफ साजिश में शरीके कार था। अहले दरबार खामोशी रहे और चंद सायद के बाद गोरिल्ले ने गोया दरबार बर्खास्त कर दिया। अब उसका हमनवा, उसका तर्जमान अलाशा था और सारे दरबारी खामोशी से वापस पलट पड़े और उनमें मैं और न्यूलस भी थे। न्यूलस के चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी और वह अपनी शक्ल से खासा गमगीन नजर आ रहा था। घर तक का फासला हमने खामोशी से तय किया। घर पहुंचकर मैंने न्यूलस से ये सवाल कर ही डाला, क्या बात है न्यूलस, तुम कुछ खामोश और संजीदा हो? ये बात नहीं है यूलियस, बस मैं ये सोच रहा था कि इंसान बाद औक़ात कितना बेहकीकत हो जाता है। एगानोस न जाने कितने अरसे से शानदार ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन इसके बाद उसका अंजाम